آغاز کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے۔ قیاس آرائیاں ختم، افواہیں دم توڑ گئیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مدت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں فوج سیاست سے دور ہے، دور ہی رہنا چاہتی ہے۔ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اہداف حاصل نہیں کر سکتی، معیشت کو بحال کرنا اولین ترجیح ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سپہ سالار نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپہ سالار کا بڑا بیان، افواہوں کو لگام ڈال دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 ماہ بعد اپنی دوسری 3 سالہ مدت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں غیر رسمی گفتگو میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، مسلح افواج خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہے۔ ظہرانے سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا، ملک کی بیمار معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مضبوط معیشت کے بغیر سفارت کاری نہیں ہو سکتی۔ دورہ امریکہ میں آرمی چیف کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ پینٹاگون کا دورہ کیا، جہاں امریکی سیکرٹری دفاع، قومی سلامتی کے مشیر اور ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بھی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں سیلاب کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدگان کے ریسکیو اور بحالی کے لیے دنیا بھر کی مدد ناگزیر ہے۔ آرمی چیف نے امداد اور حمایت پر امریکی حکام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کا تقرر آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ عمران خان کو نومبر کے ہال پڑ رہے ہیں۔ نومبر خیر و عافیت سے گزر جائے گا اور انتخابات بھی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ خواجہ آصف نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے صدر مملکت کے ہاتھ پیغام بھجوایا، ترلے منتیں کیں، ہاتھ پڑے پاؤں پڑے اور پھر جلسوں میں دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ پاکستان کی سیاست میں اگر وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے، ساری قوم جو ہے ان کے سٹینڈ کے ساتھ ہے۔ کسی شخص کے اقتدار کی حفاظت کے لیے یہ چوکیداری کے لیے معمور نہیں ہوئی۔ اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے غیر جانبداری کو چھوڑیں اور میری مدد فرمائیں۔ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں، وہاں پہ پاؤں پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، ترلے کرتا ہے، جلسوں میں اپنے ورکروں کے سامنے جو ہے بڑھ کے مار۔ اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے۔ اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے 5 سال یہ بھی مکمل کرنے ہیں اور 5 سال اگلے بھی لینے ہیں، اس نے اس کا دماغی توازن درست نہیں رہا۔ اقتدار کی ہوس نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے۔ 5 اشخاص کے نام آتے ہیں، 5 میں سے کوئی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں ایسے سال ہیں جس میں 5 نمبر سے جو نام نہیں بھی ریکمینڈ ہوئے تھے، ان میں سے بھی لوگوں پہ اپوائنٹ کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام مراحل آئین اور قانون کے تحت طے پائیں گے، وقت پہ الیکشن ہوگا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ملک کے لیے خدمات ہمیشہ قابل تعریف رہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی انتک کوششوں سے فوج کا حوصلہ بلند کیا۔ فوج سیاست سے دور رہے گی، مدت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑ دوں گا۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن فوج نے ہمیشہ غیر جانبداری کا ثبوت دیا۔ انڈائریکٹلی کوشش تو گئی کہ بیچ میں انوالو کیا جائے، لیکن ہمیشہ سے آرمی نے اپنی جو اے پارٹیسن ہے اور اے پولیٹیکل جو نیوٹرلٹی ہے، نہ صرف اس کو اسٹیبلش کیا بلکہ پروو بھی کیا۔ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف نے فوج کے لیے بہترین کام کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی آپریشن، فلڈ ریلیف آپریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اتنا کام فوج کے لیے کیا ہے میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے کیا۔ ہی واز دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان آرمی، ایون لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے انت تک کوشش کی ہے۔ اب آپ چاہے وہ فلڈ آپریشن ہوں، نیچرل کلیمٹیز ہوں، یا آپ کی اپنی آپریشن ٹریننگ ہو، یا ایٹ ٹائم اس کے ساتھ ہر جگہ پر وہ آگے موجود ہوتے تھے۔ آئی تھنک یہ ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اور اس کے فوج کا مورال بہت ہائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دوسرے ملکوں کے ملٹری سربراہان سے بہترین رابطے اور تعلقات رہے ہیں۔ ان کے کام سے فوج کا مورال بلند ہوا ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टांक में सैलाब मुतासरीन से किया गया वादा पूरा कर दिखाया। 24 रोज़ के अंदर मुतासरीन के लिए 100 घरों की तामीर मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म ने 2 सितंबर को टांक के दौरे पर मकानात की तामीर का वादा किया था। घरों की तामीर के अलावा सोलर सिस्टम की सहूलत से आरास्ता स्कूल, क्लिनिक और ट्यूबवेल भी कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घर तामीर करने वाली कंपनी के CEO से मुलाकात में उनका शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपका जज्बा काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से टांक में सैलाब मुतासरीन से किया गया वादा पूरा कर दिखाया गया है। 24 रोज़ के अंदर मुतासरीन के लिए 100 घरों की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आज़म ने 2 सितंबर को टांक के दौरे पर मकानात की तामीर का ये वादा किया था। वादा किया गया था कि 100 दिन के अंदर 100 मकानात 24 दिन के अंदर 100 मकानात तामीर किए जाएंगे। घरों की तामीर के अलावा सोलर सिस्टम की सहूलत से आरास्ता स्कूल, क्लिनिक और ट्यूबवेल भी कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घर तामीर करने वाली कंपनी के CEO से मुलाकात में उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि आपका जज्बा काबिल तारीफ है। टांक में फ्लड रिलीफ विलेज के 100 घर मुकम्मल हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से वादा किया था जो कि पूरा कर दिखाया है। वज़ीर आज़म ने 2 सितंबर को टांक के दौरे पर मकानात की तामीर का ये वादा किया था। 3 सितंबर को जगह का इंतखाब हुआ। 11 सितंबर को तामीर शुरू हुई और 24 रोज़ में मुकम्मल कर दी गई। सोलर सिस्टम की सहूलत से आरास्ता स्कूल, क्लिनिक, ट्यूबवेल भी कायम किए गए हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस कंपनी के CEO ने मुलाकात की है, जिसमें वज़ीर आज़म ने उन्हें तामीर पर शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद पेश की। PTI के अहम रहनुमा कौमी असम्बली से दिए गए इस्तीफों से मुकर गए। 124 अरकान के इज्तिमाई इस्तीफों को अपनी सियासी चाल करार दे डाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्तीफे खालिसतन सियासी बुनियाद पर दिए गए थे, जिन्हें कानून की नज़र में इस्तीफ़ा कहा ही नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ ने एक और यू टर्न ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफे महज सियासी हरबा करार उनकी कानूनी हैसियत पर खुद ही सवाल उठा दिया। इस्तीफे कानूनी तौर पर प्रोसेस न होने का इल्जाम एक हालिया ऑडियो लीक को भी ढाल बना लिया। PTI ने दरखास्त में कहा है कि कौमी असम्बली से इस्तीफों का मकसद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर राजी करना था। ऐसे इस्तीफों को कानून की नजर में इस्तीफा नहीं माना जा सकता। स्पीकर ने कानून पर अमल दरामद किए बगैर सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए, जो गैर आईनी इकदाम है। दरखास्त के साथ 25 सितंबर को सोशल मीडिया पर लीक होने वाली ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी बतौर सबूत जमा कराया गया है कि इस्तीफों के मुताबिक नवाज शरीफ से हिदायत ली गयी और उनको दुरुस्त कानूनी अंदाज में प्रोसेस नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला दरखास्त की समाअत जुमेरात को करेंगे। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि मकबूल लीडर को अपनी हार नजर आई तो इस्तीफे वापस लेने का शगुफा छोड़ दिया। ये अपनी किसी भी बात पर स्टैंड नहीं लेते। अज़मा बुखारी समा से गुफ्तगू कर रही थी। इसके ऊपर ये यूटर्न ले लेके थकते नहीं है और हम इनकी बातों पे जो है बात करके थक चुके हैं, आवाज़ार हो गए हैं। जो इतने अजीम रहनुमा है, मकबूल तरीन शख्सियत है पाकिस्तान की, वो इन तमाम हल्कों से इलेक्शन लड़ी थी। इनको रिपोर्ट्स इनके हल्कों से मिल गई थी कि इमरान खान साहब बुरी तरह जलीलो ख्वार होंगे और इसलिए इन्होंने ये नया शगुफा छोड़ा है। 1 हफ्ता पहले ये इस्तीफे मंजूर करवा रहे थे, अब 1 हफ्ते बाद ये इस्तीफे जो है वो वापस लेने के लिए वो जो है वो हो गए हैं। इतने बेशरम लोग हैं ये, इतनी घटिया सियासत है इनकी। पाकिस्तान की सियासत पे एक धब्बा है। जिस आदमी की पार्टी के, जिस आदमी की पॉलिसीज में इतना तजाद हो, वो आदमी लीडर कैसे हो सकता है? 180 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान 124वें से 140वें नंबर पर चला गया। ईमानदारी ऐसी कि खुमियाजा मुल्क को भरना पड़ा। जब हमें हुकूमत मिली उसमें इतना बड़ा खसारा था, इतना गौर से बात सुन। अगर लीडर ईमानदार होता तो LNG स्कैंडल ना होता, चीनी गंदुम का बहरान ना होता, पिशावर BRT मंसूबे में अरबों का नुकसान ना होता। चीनी का माफिया है, आटे का, वो आराम से वो पैसे बनाते जा रहे हैं। तोशाखाना का कीमती सामान ना बेचा जाता। हर शोबे में इमरान खान के अजब करप्शन की गजब कहानियां। ये ना समझे कि इमरान खान आके कुछ जादू का डंडा हिलाएगा और सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। गौर से बात सुन।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज दोहा के रास्ते लंदन रवाना हो गई। मरियम नवाज के मुताबिक उनसे इंतजार नहीं हो रहा कि कब तैयारा उतरे और वो अपने वालिद से मिले। उनसे मुलाकात बहुत खुशी का दिन है। लाहौर से आसिम नसीर की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर निजी एयरलाइन से बरास्ता दोहा लंदन रवाना हुई। रवानगी से पहले वालदा और दादी दादा की कब्र पर हाजिरी दी। मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इन्हें वालिद से मिलने का बेचैनी से इंतजार था। क्या 3 साल बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया आपने? समा से गुफ्तगू में बोली, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। इमरान खान फितना है, इसका इलाज राना साहब को करना आता है। मरियम नवाज एयरपोर्ट पर शहरियों से घुल मिल गयीं। बड़ी तादाद में मुसाफिरों और फजाई मेजबानों ने सेल्फियां बनाई और मरियम नवाज की तारीफ की। आपको देखा तो माशाल्लाह उससे बहुत ज्यादा प्रीति है। अच्छा, बस मुझसे रहा नहीं गया तो फिर वहाँ गई। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी मरियम नवाज के हमरा लंदन रवाना हुए हैं। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। और इमरान न्याजी या इमरान नाजी, साबिक वजीर आजम की जानिब से लॉन्ग मार्च से पहले कारकुनों से हल्फ लेने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे किए हैं। किसी ने इमरान न्याजी को हिटलर नाजी से मिलाया तो किसी ने इमरान खान के अंदाज को न्याजी सल्यूट करार दिया। रिपोर्ट देखिए। मेरे लिए इस वक्त कौम मेरे साथ खड़ी है। मैं जब चाहूँ इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ, लेकिन अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहा। ऊंची दुकान, फीके पकवान, कुछ ऐसे ही है हमारे कप्तान। कभी धरने की कॉल, कभी लॉन्ग मार्च का ऐलान। एकदम कॉल दूंगा। सबने मेरी कॉल की इंतजार करनी है, ज्यादा देर नहीं है। दूसरों को ना घबराने का भाषण देने वाले कप्तान पर लगता है 25 मई के नाकाम स्टंट के बाद अब घबराहट तारी है। घबराना नहीं है आपने, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जब ही तो इमरान खान ने इस बार लॉन्ग मार्च से पहले कारकुनों से बाकायदा हल्फ लेना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। इस नाम निहाद हल्फ बर्दारी पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। इमरान न्याजी को इमरान नाजी ही करार दे दिया है। सार्फिन ने तंज़ो मिज़ाह से भरपूर मीम्स भी बना दिए। किसी ने इमरान न्याजी को हिटलर नाजी से मिलाया तो किसी ने चेयरमैन पीटीआई के अंदाज को न्याजी सलूट का लक़ब दिया। हल्फ लेने की नौबत आखिर आई क्यों? क्या साथियों और कारकुनों की वफादारी पर शक है या फिर लॉन्ग मार्च की नाकामी का खौफ? सवाल उठ रहे हैं। और लॉन्ग मार्च, इमरान खान के गले की हड्डी बन गया। नाकामी के खदशे ने चेयरमैन पीटीआई के परेशानी बढ़ा दी। इमरान खान ने रहनुमाओं और कारकुनों से हलफ ले लिया, लेकिन लॉन्ग मार्च की तारीख फिर भी नहीं बताई। क़ज़ाफ़ी भट्ट की रिपोर्ट। लॉन्ग मार्च कहीं फिर नाकाम ना हो जाए। मार्च में लोगों का हदफ कैसे पूरा करना है, पीटीआई चेयरमैन की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी। कारकुनान से लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए हलफ ले लिया। हर किस्म की कुर्बानी दूंगा। ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलास से आए रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात में ज्यादातर बात कारकुनों की तादाद के हवाले से ही की। खिताब में कारकुनों से बार बार वादे लेते रहे। हर एमएनए, एमपीए और मकामी रहनुमाओं को मुख्तलिफ टास्क सौंपते हुए कहा कि पीटीआई के अरकाने कौमी असम्बली 4-4 हजार और सूबाई असम्बली के मेंबर 2-2 हजार कारकुन साथ लेकर आए। 6,000 लोग लेके आने इस्लामाबाद। उसके लिए लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, वहाँ पहुँचना, ये सारी तैयारी आपकी जिले तंजीम या टाउन्स की तंजीम को करना चाहिए अभी से। विलेज और नेबरहुड काउंसिल से 100 अफराद लाने के अहकामात दिए और डाटा शिबली फराज को भेजने की हिदायत की। इमरान खान ने कारकुनों से खिताब में 25 मई के लॉन्ग मार्च की नाकामी और एहतजाजी प्रोग्रामों में कारकुनों के ना आने का भी एतराफ किया। कैमरामैन उमर अजीम के साथ क़ज़ाफ़ी भट्ट, सवा, लाहौर। मजिस्ट्रेट साहिबा,
ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। मैडम ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था, माजरत करना चाहता था। कभी घबराना नहीं है आपने, माजरत करना चाहता था, आपने घबराना नहीं है। अगर इसी तरह आप करते रहे, आप सबको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कभी घबराना नहीं है आपने। 4 महीने से मैं सब्र कर रहा हूँ। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं जब चाहूँ इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ। जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में ला के, डरा के, धमका के, कभी घबराना नहीं है आपने। जो घबराए हुए हैं वो आजकल, मैं वो हूँ। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, घबराना नहीं, मैंने एक का नाम लिया है इस वीडियो में, घबराना नहीं, मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। अगर मुझे कुछ हुआ, घबराना नहीं, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। आपने घबराना नहीं है। कोई भी शक कर रहे ना इस मेरे खत के ऊपर, लेकिन घबराना नहीं है। अब हमने सिर्फ खेलना नाम नहीं लेना, घबराना नहीं है आपने। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। नैब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाने का तहरीरी मौक़िफ़ जमा करा दिया। इस्लामाबाद से जुल्फ़िकार इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के कौमी असम्बली से इस्तीफों पर एक बार फिर सवाल उठा दिया। नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इमरान खान को अवाम ने इत्मीनान करके असम्बली भेजा था, वो नैब तरामीम पर सवालात ऐवान में उठा सकते थे। वोटर्स की मर्जी के बगैर असम्बली क्यों छोड़ आए? इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि असम्बली में शोर करने की कोई अहमियत नहीं, हुकूमत अक्सरियत के बल पर कानून मंजूर करवा लेती है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि पार्लियामान आइन और शरीयत के ताबे है, जबकि एहतसाब इस्लाम का बुनियादी असूल है। ख्वाजा हारिस ने नुक्ता उठाया कि प्ली बारगेन करने वाले मुल्ज़िमान नैब तरामीम के तहत बरी होकर रकम वापस मांग सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, ऐसे तो रियासत को अरबों रुपए की अदायगी करना पड़ेगी। अदालत की इस्तफसार पर कि अगर पार्लियामान नैब कानून को खत्म कर दे तो अदालत क्या कर सकेगी? वकील ने बताया, सुप्रीम कोर्ट 1990 में वापस लिया गया कानून बहाल कर चुकी है। केस की समाअत जुमेरात को भी जारी रहेगी। जुल्फ़िकार इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमारे कोई केस माफ़ नहीं हुए, अगर हुए तो इमरान खान कोई एक बता दें। केस तो इस खातून के माफ़ हुए जो इमरान खान और उनकी अहलिया की ट्रस्टी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनसे हिसाब लिया जाएगा, ऐसा हाथ डालेंगे कि फिर इनको रिलीफ ना मिल सके। से जो है माफ करने की उसने बात की, केसेस तो पंजाब गवर्नमेंट ने माफ किए हैं उस खातून के जो इस वक्त पता नहीं अमेरिका में है या दुबई में है, जो मलिक रियाज से उसने ज़मीन ली है सुहावे में, उसका जो ट्रस्ट है उसमें वो ट्रस्टी है इनकी बेगम साहबा के साथ और इस इमरान खान के साथ तीसरी ट्रस्टी वो है, उसके केस माफ हुए हैं। हमारा कौन सा केस माफ हुआ है? कोई एक केस बता दें जिनका जो माफ हुआ हो, एक्शन लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हाथ इस तरह डाला जाए कि वो कानून और कायदे के मुताबिक हो, ताकि इनको रिलीफ मिलने का जो खदशा है या पॉसिबिलिटी जो है कम से कम हो। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर वार। कहते हैं इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खातों की तफसील के लिए स्टेट बैंक को खत नहीं लिख सकता। फवाद चौधरी ने माशी इस्तेहकाम से मुतालिक आर्मी चीफ के बयान की तारीफ भी की। आज इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को इमरान खान के अकाउंट्स के लिए लिखा है। जब फैसला महफूज हो जाता है, आप उसमें नई एविडेंस शामिल नहीं करते। पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग केस किधर गए? इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक लॉन्ग आर्म बन गया है PMLN की और PDM की, जिसकी वजह से सारे मुल्क का जो सिस्टम है वो बैठ गया है। सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। 20 से 25 लाख लोग वो हमारा टारगेट है। आर्मी चीफ का बयान बड़ा जो इकोनॉमी के मतलब उन्होंने बात की है वो बड़ी साहिब है। मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा अगर आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं? ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आ जाए फिर उसको बदल दें, फिर दूसरी आ जाए उसको बदल दें और साथ हम कहें कि नहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये नहीं हो सकता। वो सारे जर्नल जो हैं वो एक प्रोसेस से आते हैं और तमाम का एहतराम है। हमें लगने वाले पे प्रॉब्लम नहीं, हमें लगाने वालों पे प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में अवाम वबाई अमराज के शिकार हैं। 82 लाख अफराद को सेहत की सहूलत की ज़रूरत है। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान के लिए हेल्थ इमरजेंसी की अपील कर दी। और इंटरनेशनल रेसलर्स का राजनपुर में कायम आर्मी कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, रेसलर्स को तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली पर ब्रीफिंग।
दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाले इमरान खान की अपनी पार्टी में दोहरा मयार देखा जा रहा है। लाहौर में इमरान खान से मुलाकात के लिए आने वाले रहनुमाओं और कारकुनान के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे कज़ाफी बट से। जी कज़ाफी, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा यहाँ पे उलट साबित हुआ है, बल्कि यहाँ पे हमें दो पाकिस्तान नजर आए हैं। जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से मिलने के लिए वुज़रा और आला क़यादत जो आ रही थी, उन्हें 90 शाहराह पर मेन गेट से जो है वो एंट्रेंस दी गई और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। जबकि जो दीगर अजलास से रहनुमा और कारकुन आ रहे थे, उन्हें जो पिछला गेट है जहां से अमूमन आउट किया जाता है मुलाकातियों को, वहां से उन्हें एंट्रेंस दी गई और उन्हें ये हिदायत दी गई कि बाहर सड़क पर अपनी गाड़ी पार्क करें या जहां भी जगह मिलती है वहां पे गाड़ी पार्क करके पिछले गेट से एंटर होके मुलाकात के लिए वो जा सकते हैं। बड़ी तादाद में आज कारकुन और रहनुमा मुलाकात के लिए आए हुए थे, लेकिन एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तान में नजर आए और आने वाले कारकुनों को जो है वो ना तो प्रोटोकॉल मिला बल्कि उन्हें गेट पर नाम लिखवा के अंदर जाने की इजाजत दी गई। बहुत शुक्रिया कज़ाफी बट आपका। नैब तरामीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी इमरान नियाजी है। वज़ीर-ए-आज़म की मॉम ने खुसूसी अतातार की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नैब तरामीम में जल्दी परवेज़ खटक और असद कैसर को थी, ये तासुर गलत है कि नैब तरामीम अपने फ़ायदे के लिए की हैं। नैब नियाजी गठजोड़ ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। लीगी रहनुमा ने सवाल किया कि फराह खान किसके कहने पर दुबई बैठी है, तफ्तीश का सामना क्यों नहीं कर रही। नैब तरामीम के ना हम मौजद हैं, ना हम आर्किटेक्ट हैं, ना हमने इसको आगे किया। ये तो इमरान नियाजी साहब की तरामीम है जिसमें माइनर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन्होंने तो वफाकी काबीना को भी इस्तिस्ना दे दिया था। इस मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया इस नैब नियाजी गठजोड़ के नतीजे में। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जो ये कहता है कि नैब को बतौर एक सियासी टूल के, बतौर सियासी इंतकाम के एक आला-कार के इस्तेमाल किया जाता है। ये तासुर जो दिया जा रहा है कि नैब तरामीम से मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों को फायदा है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। नैब तरामीम में सबसे ज्यादा जल्दी परवेज खटक साहब को, असद कैसर साहब को, इमरान खान साहब को भी नैब कानून की तरामीम इन्होंने ही तजवीज की थी। नैब की बॉडी तो बनाई गई थी मेगा करप्शन की केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इन नैब तरामीम का इमरान नियाजी है। फराह साहिबा पे जो केस है, तो वो दुबई किसके कहने पे बैठी हैं, वो दुबई क्यों बैठी हैं, क्या उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए। तब्दीली सरकार के मेगा करप्शन रूडा मंसूबे की तबाकारियां जारी है। गरीबों से जमीन हथियाने का एक और वाकया सामने आया है। काला खताई रोड पर प्राइवेट गुंडों के जरिए किसानों को उनकी फसल काश्त करने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट से जमीनें हथियाने पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आसिम नसीर की रिपोर्ट। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमरान खान की इमा पर कार्रवाइयां जारी। काला खिताई रोड पर वाक़या मौजा एयानगर कला में फसल काश्त करने वाले किसानों को प्राइवेट गुंडों के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रूडा इंतजामिया ने पुलिस की भारी तादाद भी बुलवाई। इंतजामिया ने पटवारियों और पुलिस के साथ मिलकर ग्रीन लैंड पर कब्जे की कोशिश भी की। किसानों ने इल्जाम आयद किया रोडा ने काश्त की जाने वाली जमीन को भी कब्जे में ले लिया। लाखों रुपए की फसल के बीज छीनकर जमीन कब्जे में ले ली गई। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया रोडा ने मजीद जमीन इंक्वायर न करने के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। किसानों ने नाजायज कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जहां गरीब किसानों की मैशियत को कुचल रहा है, वहीं मुस्तकबिल करीब में ये इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद और माहौल का सबसे बड़ा दुश्मन भी साबित होगा। माहिरीन इस हवाले से क्या पेश गोई कर रहे हैं, आयशा बता रही हैं इस रिपोर्ट में। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोई एक नहीं बल्कि अपने साथ बहुत से मसाइल लाएगा। आबादी के बढ़ जाने से इंसानों पर किस तरह से मनफी असरात मुरतब होंगे, आइए जानते हैं। हरी भरी फसलों को बंजर जमीनों में बदलने और ज़राई जमीनें हथियाने का मंसूबा, जिसे नाम दिया गया है रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। ज़ेरे ज़मीन पानी के माहिर कहते हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुस्तकबिल करीब में पानी की किल्लत का बाइस बनेगा। हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसकी क्वालिटी दिन ब दिन एक तो ख़राब हो रही है क्योंकि नेचुरल रिचार्ज नहीं हो रहा,
اور دوسرا ہمارا پانی کا لیول جو ہے وہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 1 میٹر پر اینم یعنی 1 میٹر پر سالانہ کے حساب سے ڈاؤن ہو رہا ہے۔ لاہور کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ ماہرین ماحولیات کہتے ہیں نیا شہر بسنے، صنعتوں میں اضافے اور ہریالی ختم ہونے کے باعث لاہور میں ماحولیاتی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے۔ ہماری جو ایگریکلچر ایکٹیویٹی وہ ڈسٹرب ہوگی۔ دوسرا ہم اس میں بات کر سکتے ہیں ایئر پولوشن کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، آلریڈی ہمارے جو ہے نا اسموک کی پرابلم بہت زیادہ تھی یہاں لاہور کے اندر۔ پروجیکٹ شروع ہوگا تو اسموک کی جو پرابلم ہے وہ دوبارہ سے ارائز ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں، حیاتیاتی تبدیلیوں کے ماہر کا کہنا ہے نیا لاہور آباد ہونے سے انسانوں کے ساتھ ساتھ آبی حیات، چرند پرند کو بھی نقصان ہوگا۔ ہیومن بینگ کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور سپیشیز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جب تک وہ سپیشیز ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کریں گی، ایکو سسٹم امبیلنس کی طرف چلا جائے گا اور ہمارے لیے وہ چیز بہت نقصان دہ ہوگی۔ ماحولیات، زیر زمین پانی اور حیاتیاتی تبدیلیوں کے ماہرین نے اس پروجیکٹ کو کسی ویران جگہ آباد کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق پرانے لاہور پر نیا لاہور بسانے کا منصوبہ ماحول دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ کسانوں کا معاشی قاتل بھی ہے۔ کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور۔ سائفر سے متعلق عمران خان کی آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے FIA کی 5 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی 5 رکنی تحقیقاتی ٹیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی FIA اسلام آباد زون کے ڈائریکٹر کریں گے۔ ٹیم میں ISI، MI اور IB کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ PDM کے ترجمان حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بننے کے باوجود گرفتار ہو سکتے ہیں تو عمران خان کیوں نہیں؟ عمران خان کی جگہ بنی گالا نہیں اڈیالہ ہے۔ سما کو خصوصی انٹرویو میں حافظ حمداللہ نے کہا کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے تو نواز شریف وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان صدر بن سکتے ہیں۔ جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لانگ مارچ سے، وہ نتائج وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان کا بنیادی مقصد انتشار ہے، فساد ہے، افراتفری ہے۔ اب انتشار، فساد، افراتفری کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ میں اقتدار تک دوبارہ پہنچ سکوں۔ قانون بہت مضبوط ہے، قانون کی طاقت سے پھر ان کو روک لیں گے۔ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو KPK میں خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، یہ دونوں اسمبلیاں آپ ڈیزالو کر دیں، خود بخود الیکشن کا ماحول اور فضا سامنے آئے گا، پھر الیکشن سب کریں گے۔ NRO تو آپ مانگ رہے ہیں۔ ایوان صدر میں جو آپ نے ملاقات کی، آپ کو NRO نہیں ملے گی۔ اس کو بنی گالا کے بجائے اڈیالہ میں ہونا چاہیے۔ یہ شخص ریاست کے لیے بھی خطرہ ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے، یہ آئینی اور قانونی اور آرمی رولز کے مطابق وقت کے وزیر اعظم کی صورت ہے۔ عمران خان کے مرضی کے مطابق نہ الیکشن ہوگا، نہ عمران خان کے مرضی کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف کی نامزدگی ہوگی۔ نواز شریف کا اپنا ملک ہے، وہ پاکستان آ سکتا ہے۔ ہر ادارہ اپنے حدود میں کام کرے، آئینی حدود میں، تو نواز شریف وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے پھر، اور مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بھی بن سکتا ہے۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم ہونے کے باوجود وہ گرفتار ہو سکتا ہے، تو عمران خان بھی ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے ارکان کو فنڈز ملے نہ ملے، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے اپنے بیٹے پر فنڈز کی بارش۔ مونس الہی کے حلقے N69 کے لیے 30 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج مل گیا۔ PTI کے ناراض ارکان نے معاملہ پارٹی چیئرمین کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف کے ارکان فنڈز کے لیے پریشان۔ پنجاب میں حکومت PTI کی، لیکن فنڈز مسلم لیگ کاف کے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی اپنے بیٹے پر ترقیاتی پیکج کی بھرمار۔ مونس الہی کے حلقے N69 کے لیے اربوں کی بارش۔ منصوبوں کے لیے 30 ارب روپے کی گرانٹ دی جائے گی۔ گرانٹ سے N69 کی سڑکوں پر 17 ارب روپے کے اخراجات۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے لیے 2 ارب 63 کروڑ روپے کی بھاری رقم مختص۔ IDAP اتھارٹی کے لیے 10 ارب 91 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ تحریک انصاف کے ارکان منہ تکتے رہ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے مونس الہی کو دی جانے والی گرانٹ پر تحریک انصاف کے حلقوں میں شدید تحفظات۔ معاملہ پارٹی چیئرمین کے سامنے اٹھانے کا عندیہ دے دیا۔
पंजाब हुकूमत ने सियासत के लिए झूठ की तमाम हदें पार कर दी। जिना अस्पताल लाहौर में ट्रामा सेंटर बना, ना इमरजेंसी की इमारत। वजीर आला ने जल्द ऑपरेशनल करने का ऐलान भी कर दिया। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के मुताबिक जिना अस्पताल की बड़ी इमरजेंसी और जदीद ट्रामा सेंटर जल्द काम करना शुरू कर देंगे। क्या इस बात में कोई हकीकत है? आइए आपको दिखाते हैं। ये खाली जमीन है जिना अस्पताल के तौसी मंसूबे की। ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी की नई इमारत यहाँ बनाई जानी है। 50 किनाल राजी पर झाड़ियों और कचरे के अलावा कुछ नहीं। वजीर आला ने दोनों मंसूबों को जल्द ऑपरेशनल करने का बयान भी ताक दिया। डॉक्टर साहब जितना काम कर रही है ना, शायद ही को करता हो। जितनी इमरजेंसीज है ना, उनको अपग्रेड कर रही है मेरे साथ। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी तख्ती लगाने से आगे न बढ़ सकी। वजीर आला परवेज इलाही ने जल्द फाल करने का ऐलान भी कर दिया। मंसूबों के जल्द ऑपरेशनल होने की प्रेस रिलीज भी जारी करा दी गई। 7 अरब रुपए के मंसूबे के लिए रवा साल सिर्फ 1 अरब रुपए फंड्स की तजवीज। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए झूठ बोलने पर मरीजों और शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। एक प्रेपोगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आगे मजीद इलेक्शन आ रहे हैं। इतनी जल्दी तो नहीं बन सकता नया अस्पताल। और दूसरा मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो पुराने हैं वो तो सही काम करें। असल में करने चाहिए, ये तो सियासत के लिए होते हैं सब जो करते हैं। इंतजामिया के मुताबिक तौसी मंसूबा रवा बरस तो क्या अगले साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। ऐलानात के बजाय अमली इक़दाम करने होंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम की तहकीकात में पेशरफ। 9 ममालिक से 51 सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने फौज मुखालिफ एजेंडा चलाने पर FIA को कार्रवाई की खुसूसी इजाज़त दे दी है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक भारत से 18 अकाउंट से पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाई गई। मुत्तहिदा अरब इमारात से 13, सऊदी अरब से 6 और अमरीका से 4 अकाउंट्स फौज मुखालिफ एजेंडा चला रहे थे। एक ट्विटर सारिफ कनाडा से मुहिम चलाता रहा। कार्रवाई के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया गया है। सफरी दस्तावेज भी मंसूख की जाने लगी। तिजारती खसारे, डॉलर की कदर कम होने और कंपनीज के अच्छे माली नताइज से स्टॉक मार्केट में आज तेजी रही। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की लेन देन का 15 माह का रिकॉर्ड टूट गया। 63.5 करोड़ शेयर्स का नुमाया लेन देन हुआ। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, बताइए मार्केट की क्या सूरत हाल रही आज? जैसे जैसे सियासी और माशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और सूरत हाल क्लियर हो रही है, वैसे ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी अच्छे दिनों की वापसी हो रही है। कल भी स्टॉक मार्केट में 60 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ था और आज स्टॉक मार्केट में जो है वो 63 करोड़ 55 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ है। ये 15 माह की बुलंद तरीन सतह है कि 15 माह बाद जो है इतना कारोबार स्टॉक मार्केट में हुआ है। स्टॉक मार्केट में आज 250 से भी ज्यादा 260 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स जो है वो 41,600 से ऊपर चला गया और वो 42,000 क्रॉस होने की वहाँ बातें हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि अच्छे माली नताइज भी कंपनीज के आ रहे हैं, वो अच्छे डिविडेंड दे रही है। जैसे हप्को का बहुत अच्छा डिविडेंड आया, गैर मामूली है डिविडेंड था, उसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया था, जिसकी वजह से तेजी आई थी उसके शेयर में और स्टॉक मार्केट में भी। तो ऐसी यानी काफी पॉजिटिव दिन रहा आज मार्केट में। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए रिजवान। ओहो, अच्छा, खुदकुशी कर लेंगे? कर्जे लेने पड़ते हैं IMF से, टैक्स लगाने पड़ते हैं अपने लोगों को, गरीब गुर्बत पैदा करते हैं। ऊंची दुकान, फीका पकवान, IMF डील को दिया मुश्किल का नाम। मुश्किल ये थी कि अगर हम ये जल्दी कर्जे नहीं लेते, मुल्क को नुकसान पहुंचना। PTI तावीलें देती रही, बेवकूफ बनते रहे अवाम। जब आप कहते हैं कि कर्जे ना लें, ये ना करें, वो ना करें, तो क्या करें? मजबूर हैं। हमें IMF के पास जाना पड़ा, तो क्या करें? मजबूर हैं। कितनी दफा IMF के पास जाते, तो क्या करें? IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं और फिर कहते हैं कि हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें। और पाकिस्तान जूनियर लीग कल से शुरू होगी। नौजवान खिलाड़ियों के साथ गैर मुल्की जूनियर क्रिकेटर भी एक्शन में होंगे। नवीन अली की रिपोर्ट।
लाहौर में एक बार फिर चौके छक्के लगेंगे। इस बार जूनियर क्रिकेटर्स इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान जूनियर लीग के लिए मैदान सज गया। तमाम टीमों के कप्तान पाकिस्तानी हैं। हर टीम में 4 गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी शामिल होंगे। डायरेक्टर PHL नदीम खान पुरज़म है कि इवेंट से T20 का नया टैलेंट सामने आएगा। इस टूर्नामेंट से और जो हमारा डोमेस्टिक होता है, दोनों मिलके आपको एक बेहतरीन ऑप्शन देंगे जो पाकिस्तान टीम की जरूरत है। जूनियर लीग देखने के लिए सिर्फ 100 रुपए का टिकट रखा गया है, जबकि कर्टन रेजर प्रोग्राम में मार्च पास्ट और म्यूजिक प्रोग्राम भी होगा। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में मसाइल मौजूद हैं, कैचेस भी ड्रॉप हुए, मगर इनकी इस्लाह हो सकती है। मेरे लिए ये चेयरमैनशिप की इतनी कोई वैल्यू नहीं जितनी कि क्रिकेट की एनालिसिस मेरे लिए वैल्यू रखती है, क्योंकि मेरा काम है। क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट को झटका लगता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी एबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ को झटका लगता है। मैं तो इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं कहीं मैच नहीं देखने जाता हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई हो जाती है वहाँ ग्राउंड में। बाबर आजम कई दफ़ा मुझसे बात करते हैं कि जी देखें ये क्रिटिसाइज़म इतना ज़्यादा होता है, फलाने ये करते हैं वो करते हैं। मैं उसको खैर आपस में बैठ के तसल्ली तो देता हूँ, मगर मैं ये भी कहता हूँ कि शुक्र करो कि कहीं बाकी स्पोर्ट्स जैसा हाल नहीं हुआ कि कोई परवाह ना करे। मैं मानता हूँ कि मिडिल ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, मैं मानता हूँ कि बड़े मैच में ये फ्रीज भी कर रहे हैं क्योंकि कैचेस ड्रॉप कर देते हैं। सो वो चीज़ें हैं जो कि ठीक होने वाली हैं, बट ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं जो कि ठीक ना हो सके। सो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप में हमारे उतना ही बड़ा चांस है जितना कि किसी और बड़ी टीम का है। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।